یہ استقبال ہے علامہ سید شاہ نقوی صاحب کا اور لکھنؤ کی ایک شام کے نام میں گزارش کروں گا پہلے ایک وہ شال پہلے دوں اچھا لاؤ اچھا میں انما عباس سے گزارش کروں گا کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب میری چھوٹی بیٹی یہ استقبال کرتی ہیں بیٹا باواز بلند نعرہ صلوات محمد حضرت عباس تشریف لے آئیں ایک گلدستہ دوسری بیٹی آئیے بیٹا تشریف لے آئیں شکریہ السلام علیکم گزارش ہے ایک شال علامہ صاحب کو نفیس اللہ علیہ صاحب پیش کر دیں شال نفیس بھائی شکریہ ایک شال نفیس بھائی جانشین خطیب اکبر مولانا اجازت صاحب کو ارے نہیں آج صرف آ ہوا آج انہی کا آپ قبول کیجئے تو میں فرمان بھائی سے گزارش کروں گا ایک شال علامہ صاحب کو پیش کر دیں اچھا آپ کی جانب سے آج یاسو صاحب آپ اچھا ہاں چلیے صلی اللہ محمد محسن بھائی آپ بھی آ جائیں ایک آہان سلمو ایک گلدستہ پیش کر دیں یہ سب ہمارے پڑوس کے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں ایک شال السلام علیکم شکریہ تقوی صاحب کو ایک ہمارے کراچی سے تشریف لے آئے ہیں تقوی صاحب کو احسن رضا تقوی صاحب کو ہاں عزیز صاحب آپ بھی ہاتھ لگا دیں اللہم صلی علی محمد اب آپ تشریف رکھیں میں 2 منٹ بات کر لوں ہاں ایک تحفہ ہمارے فرمان صاحب یہ ڈائری پیش کر رہے ہیں قائم بھائی ہماری جو انجمن ہے غنچہ مہدیہ اس کے سربراہ آپ کے لیے لکھنؤ کی ایک کشیدہ کاری کا کرتا میں ان سے گزارش کروں گا پیش کریں یہ لکھنؤ کا چکن کا کرتا ہے میں کیف عباس صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور بی اے 3rd ایئر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے آپ کے لیے ایک مضمون لکھا ہے وہ آپ فرصت سے پڑھیے گا یہ آپ قبول کر لیں احسن بھائی سے آپ انیس کے حوالے سے اور آپ کی آمد کے موقع پہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ قبول کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری دیکھیے یہ محبت یہ غدیر کا موسم ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ غدیر کے موسم سے محبت کا منظرنامے کا جو رشتہ ہے وہ اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی امتیاز نہیں سب کے لباس ایک جیسے کسی میں بال برابر کا فرق نہیں وہاں پہ سب ایک صورت میں موجود ہیں اور وہاں سے محبت کا پیغام اور میرے نبی کریم کا وہ آخری خطبہ جس میں انسانیت کو اتحاد کا پیغام ملا جس میں مذہبوں کو اتحاد کا پیغام ملا جس کے لیے جوش ملیح آبادی نے ہمارے لکھنؤ میں بیٹھ کے کراچی جانے کے بعد وہاں پڑھا مگر کہا یہاں تھا انہوں نے نو انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا صلوات بھیجیں آپ حضرات اس محمد مصطفیٰ کا کیا ہنسی پیغام ہے اس محمد مصطفیٰ کا کیا ہنسی پیغام ہے خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے اور پھر آپ کی وہ جلدیں ابھی میں آپ کو اپنی لائبریری میں دکھاؤں گا جو نہج البلاغہ پہ آپ کا کام ہے تو اس حوالے سے خطیب نہج البلاغہ بھی ہیں آپ مفکر نہج البلاغہ بھی ہیں دانشور بھی ہیں اسلامی دانشوری کے سلسلۃ الذہب کی 21ویں صدی کی روشن ترین کڑی کا نام ہے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی اس لیے ایک بند تاکہ انصاف سے ہو جائے وہ یہ والا بند کراچی میں بیٹھ کے کہا گیا جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ امید فاضلی کا ہے ہر دور میں یہ دین نبی کے لیے سپر جاگیں تو محترم ہیں جو سوئیں تو معتبر عباس میں یہی زینب میں جروا گر جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں اب ہم نے یہ 2 بند پیش کر دیے اب یاسوب بھائی آپ نے بھی ہندوستانی سیاست میں قومیات میں جس طریقے سے اپنا پرچم بلند کیا ہے اور سب کو ایک کیا ہے آپ نے اس محبت کے پیغام کے حوالے سے یہاں 21ویں صدی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے جب دنیا بارود کے ڈھیر پہ کھڑی ہے فلسطین جل رہا ہے غرناطہ خون کے آنسو رو چکا اب یہ پوری دنیا خون میں ڈوبی ہوئی ہے ایسے میں ساحل لدھیانوی نے یہاں سے پیغام دیا تھا جنگ
जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बोएगी, भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो अच्छा है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो अच्छा है। तो नफीस भाई ये पैगाम साहिल लुधियानवी ने दिया था, लेकिन आप जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं, ये लखनऊ है जहां 14 मासूमीन की करबलाएं हैं और उनमें जितनी कदीम तरीन करबलाओं की शबीहें हैं एक भी मुसलमान के हाथ से नहीं बनवाई गई है। टिकैत राय ने बनवाई, झाऊ लाल ने बनवाई, काजमैन वाली जगत नारायण ने बनवाई, ये सारी करबलाएं हैं, एक दो नाम नहीं है। यहाँ गुरुमा पंडिताइन थी जिन्होंने पढ़ाइन की मस्जिद बनवाई है। यह हिंदू मुस्लिम का वो पैगाम है। यहाँ मुहर्रम में छन्नू लाल दिलगीर के मरसिए पढ़े जाते हैं, यहाँ मेवाराम के मरसिए पढ़े जाते हैं, मुन्नी लाल जमा संदिलवी के मरसिए पढ़े जाते हैं। ये वो पैगाम है मोहब्बत का और लखनऊ का। तो उस मोहब्बत के पैगाम को आपने आम किया। आज भी एक सरदार शायर हमारे लखनऊ में रहते हैं, सरदार चरण सिंह बशर, उनके 4 मिसरे हैं। मैं उसके हवाले से आपके मोहब्बतों के पैगाम को आम करना चाहूँगा कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो वो जो मोहब्बत का पैगाम आप मुल्कों के हवाले से आम करते हैं, मुल्कों में मोहब्बत, मजहबों में मोहब्बत, मसलकों में मोहब्बत, ख़ानदानों में मोहब्बत, इंसानों में मोहब्बत, रिश्तों में मोहब्बत, परिंदों में मोहब्बत, मोहब्बत से बढ़ के दुनिया में, और उसी मोहब्बत के मज़हब का नाम इश्क़ अली है। सलाम हो उन मोहब्बतों को जो मोहब्बत अली की बुनियाद पर कायम होती हैं, दवाम उन्हीं को होता है। तो आइए उस मोहब्बत को आम करने के लिए सलूनी एजुकेशनल सोसाइटी ने यह फ़ैसला किया और जूरी ने यह फ़ैसला किया कि इस साल का सफ़ीर मोहब्बत अवार्ड, ख़ास तरीके से सफ़ीर मोहब्बत जो आपने सिफारत का काम किया है, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। मैं एजाज़ अत्तर साहब से गुजारिश करूँगा और हमारे यासूब अब्बास साहब से, और आपसे थोड़ी सी ज़हमत होगी, आप लोग खड़े हो जाएं और एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नफीस भाई आप ये सर्टिफिकेट, आइए काजी असद साहब आप भी हाथ लगा दें। हाँ, अब्बास रिजवी साहब आ जाए। जी मैं भी जी जी ये गुलाम अब्बास रिजवी साहब, ये सदरुल फाजिल और वाइज भी हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से 21वीं सदी के नए नावल में जो इस्लामी तरह रुझानात हैं उन पे इनका PhD का काम चल रहा है। ये काजी असद साहब मरसिया गो भी हैं और मरसिया खान भी हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारी निगरानी में, और ये भी हमारी निगरानी में मरसिए की तनकीद का तनकीदी मुतालिया के मौजू पे काम इन्होंने कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा मरसिया पढ़ते हैं और हमारे ये भी हमारे इनकी PhD अवार्ड हो चुकी है। ख्वाजा एहसन फारूकी ने अनीस के हवाले से जो काम किया, कराची जाके थे इसी लखनऊ के, तो उन पे इनका काम है। शहजाद हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने मुशायरे के ऊपर अपना काम जो है PhD का थीसिस जो है हमारी निगरानी में मुकम्मल किया है। हमारे मुशायरा की रवायत पे हमारा एक बच्चा खिताबत पे भी काम कर रहा है। और हमारे हैदर रज़ा, ये हमारे मरसिया जो काजिम अली खां साहब आपके शिया कॉलेज में थे, उन्होंने मरसिए पे बहुत काम किया है। नवाब काजिम अली खां साहब, उनके बेटे ने एरा मेडिकल कॉलेज बनाया, तो उनके ऊपर इनकी PhD चल रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ रिसर्च का काम जो है और जो हमारे अपने ताल्लुकात और अपने निस्बतें हैं उनके हवाले से हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप जो है इस मौके पे आपने ये एजाज़ कबूल किया एहसन भाई, तो आपका भी शुक्रिया और हम सब लखनऊ वाले आपके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है। मैं चाहूँगा एजाज भाई 2 जुमले कह दें, तो आगा साहब बस 2 जुमले कह दें इस वक्त। आप बैठिए आराम से, ये कहें यासूब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए एक यादगार दिन तमाम नहीं हो रहा, हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा यादगार तर होता जा रहा है। और वो लखनऊ का शहर, यहाँ की तहजीब, यहाँ का अदब, यहाँ की तारीख़, यहाँ की गलियों में, यहाँ की फ़िज़ा में अदब और एहतराम। अगरचे
बहुत शायद ज़रूरी बात ना हो, लेकिन मजलिस जो 9 जून को बड़े इमाम बाड़े में पढ़ी गई, उसमें जो मोहब्बत का इजहार हो रहा था, अगर ये किसी और शहर में होता तो शायद मैं आज आपके सामने ना होता, शायद मार दिया गया होता। वो जो अदब की वजह से, एहतराम की वजह से उस वक्त में हमने अपने चाहने वालों का, अपनी मोहब्बत करने वालों का इजहार देखा, वो एक बहुत यादगार मेरे लिए एजाज़ है कि साहिबान कलम, साहिबान अदब, ख़ास तौर पे मेरे भाई जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब, जो मैं क्योंकि इनके घर आया हूँ और आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनसे मुलाकात से पहले भी मैं इनसे मुतासिर था, इनकी गुफ्तगू, इनका बयान, इनकी शायरी, ख़ास तौर पे इनकी खिताबत, यानी जहाँ ये बोल रहे हों तो दिल करता है कि बस यही बोलते रहें, और इनकी बोलने से जो माहौल मुअत्तर हो रहा होता है वो चंद लोगों में शायद ढूंढने से ऐसी सलाहियत और कैफियत पाई जाती हो। ये जो अवार्ड ख़ास तौर पे मेरे उसमें था कि जब मैं अपनी गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया कि मैं सफ़ीर मोहब्बत बनकर बेशक बेशक वही तो उसी को उन्वान बनाते हुए मेरे लिए एजाज़ है कि लखनऊ से सफ़ीर मोहब्बत अवार्ड और एक यादगार शील्ड और एक सनद के तौर पर ये मेरे लिए एक यादगार, ये हमारे लिए एजाज़, ये एजाज़ का एजाज़ है। मैं ममनून हूँ जनाब नैयर जलालपुरी साहब, जनाब हफीज़ हल्लौरी साहब और मेरे मेज़बान मोहतरम जनाब मौलाना यासुफ अब्बास साहब, मौलाना क़िबला एजाज़ अकबर अतहर साहब, जानशीन खतीब अकबर, दादा के नाम से मौलाना एजाज़ के नाम में एक पसवंद है और एक लाहिक़ा है। मैं और जो ये रिसर्च स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमाए हैं, लखनऊ के जवान, मैं एक मरतबा लखनऊ के जवानों को सलाम पेश करना चाहूँगा। इन्होंने जो मोहब्बत का इजहार किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम गया है, और शायद हम आए थे ये सोच के कि मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, मगर हम जब यहाँ से जा रहे हैं तो हम दो मुल्कों को जोड़ने का काम करके जा रहे हैं और इसके असरात दूर तक जाएंगे। मैं ममनून हूँ अपने भाई जनाब नैयर साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल जाना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सलावत, मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भैया वहाँ जगह इतनी नहीं है, वो विश्वासी हो जाएगी। तो बहुत सी मोहब्बतें समेटी हुई हैं पूरी दुनिया से, ऐसा ही है। हो तुम दा माशाल्लाह। ये तो हमारी किताबें हैं जो छपी हैं, यह हमारे ऊपर, मगर अब वज़न बहुत हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने हमको ट्रांसलेट किया है, यह हमारे ऊपर रिसर्च पेपर हैं, पीएचडी जो हमारे ऊपर हुई हैं वो सब हैं, लेकिन आपको सब बहुत वज़न हो जाएगा ना। क्या कुछ कर लेंगे हम। अच्छा तो अभी भाई कहाँ है, लीजिए लीजिए। शौक रहा हमारे नैयर को हमेशा से। ये सुनिए, एक हिंदी वाली आप ले जाइए आप। जी एक बार करबला से हम लोग आ रहे थे तो इतनी किताबें इन्होंने इकट्ठा कर लिया था कि वज़न में रोक दिया गया था, तो फिर हर ज़ायरों को थोड़ा 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 दिया गया, तब यहाँ तक आई। कराची में भी जब गए तो खूब पूरा एक पुलिंदा वहाँ पे कर लिया था, किताबों का ही बहुत ज़्यादा शौक इनको बचपन ये से। देखिए आपके नजुल बलागा वाला काम, आपके पास कौन सी जिल्द तक है? आप देखिए 7वीं तक है। 15 हो गई है पूरी। नहीं तो मेरे पास 7 तो मैं 8 से लिखूं, याददाश्त करो। एहसन भाई लिखिए, सरकार का पूरा सेट मेरे पास आना चाहिए, चाहे अब अमेरिका में किसी के पास भेज दें, अच्छा अमेरिका में किसी के पास भेज दें, मैं वहां से ले लूंगा। 8वीं जिल्द से और 15वीं जिल्द तक पयाम इमाम, कलाम इमाम लिखिए। और मकातुल शिया जो 7 जिल्दें छप गई हैं, तो एक मौलाना एजाज साहब के लिए और एक नैयर भाई के लिए लिखिए। ये पूरा सेट हो जाएगा। ये 15 जिल्दें हो गई हैं, ऐड हो जाना चाहिए। उस वक्त तक 7 ही छपी थी जब मैं गया था। मकातुल शिया जो हमारी किताब आ रही है ना, उसकी पहली 7 जिल्दें आ गई हैं। और भी पूरा एक सेट आपका आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ एक मिनट आगे और नहजुल बलागा का, हाँ नजुल बलागा की एक कापी देखिए, ये वाली मुझको नजफ से तोहफे में मिली थी। ओहो खत्ता ही खत्ती है। ये किसका? ये
हमें तो वहाँ बताया गया था, पीछे लिखा भी है सैयद रजी की है कहा है। रजी के हाथ का है? हाँ, ये उससे कॉपी करके बनाया है। क्या कहना है भाई? हाँ सैयद मुर्तज़ा, ये तस्दीक है कि ये? हाँ, नीचे लिखा है सब पीछे। तो भाई बहुत नायाब चीज़ है। हाँ, और ऐसे कुरान के भी एक कमरे में मखतूतात हैं, वो ज़रा सा बहुत खस्ता पोजीशन में है सब। हाँ बहुत जोलीदा हो गई इसको। हाँ, और ये हमारे पास जो ज़ख़ीरा है मौज़ूआत के तहत है, और एक सेशन रजिस्टर हमारे पास 12,000 किताबें हैं, और उसके साथ ये रखे हुए हैं कुछ उधर दूसरी किताबें भी हैं। कुरान करीम का तो पूरा तफसीर का वज़ून है, वैदिक साहित्य है पूरा। हाँ, वो की है, हाँ, डिज़ाइन की है। हाँ जी जी, ये सब पूरे घर का नक्शा सब हमारा बनाया है खुद। हाँ, इसका जो वास्तुकला है, उसका आर्किटेक्ट अज़ा खाना भी आपको दिखाएंगे उसका नक्शा, और एक थोड़ा सा कारोबारी 5 मंजिला एक वो किराए आते हैं, वो भी खुद ही नक्शा बनाया है सब। हाँ, अरफन मौला है। सामने करें। हाँ, सामने ही इसी के यहीं से भी आपको दिखा देते हैं। बहुत पानी पिया माशाल्लाह। जी अरे आ जाओ नीचे भी आराम से मिल लीजिए ना, हम आपको 2 मिनट खाली यहाँ ला रहे हैं, उतना तो आप। फोटो खींच दो, फोटो खिंचा लो बेटा। ठीक है आप? यस यस, सलाम को सलाम। ठीक है आप? अच्छा सरकार, ये देखिए फारसी में हमारे कुल्लियात सबके मिलेंगे अच्छा, आपको सब है। कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ आशुराई कलाम है, कुछ ये क्लासिक्स हैं, नया अदब है। इस सियासत पे भी पूरे पाकिस्तान की क्या कैसे तश्कील हुई, जाफ़र साहब की किताब, हसन साहब की, वो सब आपको मिलेगी। हाँ, पाकिस्तानी सियासत के जितने वहाँ के कहीं ना कहीं, बल्कि कई एक पे तो मेरा भी काम है उस पर, तो वो किताबें मिलेंगी सब आपको यहाँ। ये देखिए ईरान की पूरी जो सियासत है, और पाकिस्तान कैसे बना, ये कई जिल्दों में है, ये कंप्लीट सेट है। और उसकी हर रियासत की तारीख। जी, ये सब है हमारे पास। हमारा लखनऊ। नहीं, बहुत उम्दा। और ऐसे ये हमारे जो हिंदी में वेदों के काम, रामायण, गीता, सब अच्छा, वो भी आपको है सब। मिलेगा। हाँ हाँ, लखनवी तहजीब पे कम से कम आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में हमारे पास 1000 किताबें हैं। और ये हमारा सिर्फ जाती शौक, एक शौक हमने ऊपर बाटनी का भी रखा है। ये देखिए, ये इस तरफ से भी हम, ये ग्रीनरी का काम, इसमें हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 2-3 चीज़ों को नस्लें बना के वगैरह वगैरह, बोनसाई सब। ये ऊपर बड़ा काम है, लेकिन वो सिर्फ आपको। मिसरे नहीं जोड़ते हैं हाँ आप, हाँ हाँ, बल्कि बहुत कुछ जोड़ते हैं। आइए आइए। भाई जाफर अब्बास साहब और हाँ। अब्बास साहब दोनों टेलीफोन करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल डबल इंजन लग रहा है। बस अब रास्ता दो रास्ता। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा भाई, ये आज़ा खाना मेरा नक्शा बनाया हुआ है, सब मियाँ बीवी ने बैठ के बनाया है। आइए आपको अंदर ज़ियारत करा दें। आइए आज़ा खाने की। अच्छा, शहंशाह भाई, मैं ज़ियारत ये आज़ा खाने की ज़ियारत। ज़ियारत करूँगा। इसमें हमने आपके अलवर राजस्थान से असली आज़ा खाना मंगाया था। आइए आप, ये आइए आपको दिखाएं। ये देखिए, बिल्कुल पत्थर वहाँ का है। हाँ, सब पूरा बन के वहीं से आया। ये खाद हाँ, करबला की। और आपके लाल शहबाज कलंदर के यहाँ का कशकोल है। अरे वाह, ये लाल शहबाज कलंदर का है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। हैं? हमारे वालिद के भी शौक है इसी तरह के। हैं? ये सारे तबर्रुकात करबला मोहल्ला के। ये पत्थर क्या कहना है? आइए, ये संगमरमर मकराना का। अच्छा, मकराना यानी आपके यहाँ राजस्थान राजस्थान का। का पत्थर है। हाँ, बहुत उम्दा कटिंग है। आइए, हम बिल्कुल चलेंगे। हाँ हाँ, तो मैं गाड़ी से आ रहा हूँ पीछे, 2 मिनट के बाद आ रहा हूँ। मैं आपके यहाँ पीछे पीछे रहता हूँ, मगर मेरा वो बहुत ज़्यादा शौक कैसे। हाँ, वो